दे दो कम से मैं क्लास टीचर। अच्छा हरी कथा बोल, आप बोलो विष्णु बोल, गीता जयंती को थोड़ा बोलो तो बताइए कुछ। हाँ हाँ मैं बताऊँ, आपको थोड़ा माइक दे दिया जाए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। First of all, I offer my unlimited obeisances unto the divine lotus feet of my Guru Maharaj, my Shiksha and Diksha Gurus, Sripad Van Maharaj, and all the assembled devotees. We are all assembled here to listen from Maharaj, but he has asked me to speak something about Gita Jayanti. So, today is a very, very special day because today Dharma was spoken. In Srimad Bhagavatam it says, Dharmam tu sakshat bhagavad pranitam. That actual religion is what is spoken by the Lord himself. And today Shri Krishna, about 5,000 years ago, in the battlefield of Kurukshetra, which is not a place to talk about dharma or to give pravachan. Everyone is ready to fight, but in the middle of the battlefield, Shri Krishna spoke Bhagavad Gita, showing that in every conflict, every battle, every situation that we face in our life, the message of Bhagavad Gita is what takes us across that situation. And Shri Krishna, our acharyas have said that Bhagavad Gita is the foundation of spiritual life. Without understanding Bhagavad Gita, we cannot understand the rest of our very deep philosophy. It is the ABC of spiritual life. And Krishna, when he spoke to Arjun, he did not sugarcoat his words. Right? The first thing, he chastised Arjun saying, Ashochan anvashocastvam pragya vadansha bhashase gatasun agatasunshta na anvashochanti panditaha. That you're acting as if you're a very intelligent, learned person, but you don't even know that someone who's learned does not lament for those who have given up their body and those who are still in this world. So telling Arjun that you are not this body, what you are lamenting for your own as well as those who are connected to your material body. Unless you look beyond it, you will not be able to understand what is the real absolute truth. And we all hear this, right? And this is the first thing that Krishna told Arjun. Just like an expert physician, he did not tell him many other symptoms, but directly told him what is the root cause of his lamentation. And if we really see, the rest of Bhagavad Gita is explanation of this very fundamental truth, and Krishna telling Arjun that how to realize it, because it is easily said than realized. And if we contemplate, then every problem that we have in our life, starting from in our material situations up to the point of this cycle of birth and death, it's simply because of this ignorance that we continue to think that we are this body. And any time that anything inflicts our mentality or this consciousness which disturbs our body, we become disturbed. So Krishna throughout Bhagavad Gita tells Arjun how to become dhira, how to stay stable-minded in every situation, matra sparshas tu kanta sheet ushna dukkha, that whatever situation you may have, sukh or dukh, heat and cold, maintain your equilibrium. Because unless we maintain our equilibrium of our mind, we would not be able to make progress in spiritual life.
So this is our whole spiritual journey is to come to this understanding that we are not this body. But while we have this material body, it is not easy to realize, because if someone comes and pinches you, you're going to feel hurt. Right? How can you feel that I'm not this body? So that realization comes through the process of bhakti and by becoming detached from things that we are very attached to. Chaitanya Mahaprabhu also, when he gave his Shikshashtakam, he is actually reflecting the same thing even in Shikshashtakam when he says, Prinata Pishunichen, Tarora Pistahishtuna, Amanina Manaden Kirtanya Sadahari, that we should become more humble than a blade of grass and more tolerant than a tree. How is that possible if we are in this bodily consciousness? Right? It is not possible. So, unless we are in this bodily consciousness, we cannot become humble. And until we are humble, we cannot get over this bodily consciousness. So, Mahaprabhu then, when he says afterward, Na dhanam, na janam, na sundari kavitam va jagadish kamay. Again, that cannot happen unless we understand this first thing that Krishna is telling Arjun, that you are not this body. Because unless we have that realization, we will not be able to overcome the desire for dhan, the desire for followers, the desire for people glorifying us. So all of these things which ultimately cause all the conflicts within ourselves, with other people, in the society, in the world, because of desire for wealth, desire for followers, desire for people to glorify us. All of these things ultimately is because of our own bodily consciousness. And unless we realize that, we keep blaming others, right? So Krishna is telling Arjun, look within yourself, that you are your own mind, you yourself is your best friend, you yourself are your greatest enemy. So throughout Bhagavad Gita, Krishna gives so many practical truths, so many practical things to Arjun. So Bhagavad Gita forms a very comprehensive, I always like to say, a very comprehensive blueprint of framework for human life. And without understanding Bhagavad Gita, we cannot make any spiritual progress. Just like unless we know ABC, we cannot form words and sentences. And we are still at least I can say for myself, still trying to recognize the letter A, what to talk of being able to speak it. But our acharyas, Gurudev and all our Guru Varga are so merciful that they have given us not just the letters, the words, the sentences, so much more. So they have given us all the knowledge, all the way to Srimad Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita. But at the same time, they have cautioned us. So many times, Gurudev, when he was here in Houston also, many times cautioned that unless you understand Bhagavad Gita, unless you understand at least theoretically, and try to meditate on this, if you try to jump to the higher subject matters, it will cause you to fall down. So today is this very special day. We are fortunate that Maharaj is here and we will listen from him more about Bhagavad Gita. I request everyone, if you don't have a copy of Bhagavad Gita, this is one book you should always have. And if you can always keep a pocket book, and I can tell you from my experience that any time you have a situation in your life, you just open Bhagavad Gita, thinking of Gurudev's lotus feet, Radha Govindji's lotus feet, open Bhagavad Gita, and 100% you will find the answer on the page that you open Bhagavad Gita on. So make sure everyone has a copy of Bhagavad Gita. Hare Krishna. आपको सुनने आया. No, Maharaj, you speak. Please. टाइम नहीं है, देखो टाइम कब तक टाइम खत्म कब कर? 1 घंटा है. 1 घंटा रहेगा. आप 2 दिन ही आए. अरे आप अच्छा थोड़ा 5 नहीं, मिनट आप सुना. कम है. गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो
नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बड़े काम हो रहे थोड़ा ऊपर कर। हिंदी में बोलता हूँ। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत शिलवामन श्री महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण श्री महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सचमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव मातृवृंद हरि कथा पिपासु श्रोतृवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा जथा दंडवत प्रणाम स्वीकारूं। आज अतिव सुंदर पवित्र तिथि है, एकादशी महातिथि और साथ ही साथ गीता जयंती उत्सव हम लोग मना रहे हैं। काल से परसों से ही हम गीता जी के ऊपर कुछ श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। श्रील गुरुदेव इसी संदर्भ में बहुत सुंदर बात बताते थे। जिस हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्मा काचित उपासना ब्रजबधु वर्गण जय कल्पित। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम प्रेम कुमार्तम श्री चैतन्य महाप्रभुर मौतमिदम तत्रादरो न परम। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं बरिनंदन श्याम सुंदर कृष्ण वे हमारे आराध्य देव है, इष्ट देव, आराध्य भगवान ब्रजेशत्व है। और उसी प्रकार उनकी जो परमाख्य धाम जो है परम धाम वृंदावन। शास्त्रों में अनेक धामों का वर्णन है, किंतु सर्वश्रेष्ठ धाम वृंदावन का, जिससे हमारे कृष्णदास कविराज भी कहते हैं वृंदावन हृदय मम वृंदावन मम जीवन। वृंदावन जो है मेरा हृदय स्वरूप है, वृंदावन मेरा जीवन स्वरूप है। क्योंकि स्वयं भगवान प्रशिक्षकर कृष्ण वृंदावन धाम में अपने सर्वोत्तम रस माधुर्य लीलाओं के प्रकाशित किया, जिससे श्रीमद् भागवत प्रमाण दे रहे। कृष्ण के जितने प्रकार की लीलाएं हैं, सर्वोत्तम लीला क्या है? रास लीला। जिनका जय जय जलो रास सर्वरस सार पारकिया भविजता ब्रजिते प्रकाश। कृष्ण की सारी लीलाओं कहां पर प्रकाशित हुई? वृंदावन धाम यानी माधुर्य। गौड़ीय वैष्णव की यही एकमात्र सर्वोत्तम आशा आकांक्षा यही इच्छा, जो वृंदावन धाम की मधुरिमा माधुर्यता हमारे हृदय में प्रकाशित हो। क्योंकि भगवान की लीला की सर्वोत्तम राशि है, जिसमें श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट जितने भी कथा सुनाया और समस्त कथा की सारी कहा दिया
ये रास लीला कथा श्लोक आ रहे हैं उसमें। कहते हैं ये महाराज परीक्षित लीला कथा निसेवनम, मैंने जो कुछ भी कथा कहा दिया समस्त कथा की सार क्या है? कृष्ण की लीला कथाओं के श्रवण करो। यही लीला कथाओं को श्रवण करते करते जब शरीर छोड़ दोगे और साक्षात रूप में भगवान की प्राप्त करोगे। जैसे गीता में संत भगवान कहते हैं मृत्यु के समय जीव जैसे जैसे चिंतन करके शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु के पश्चात वही शरीर प्राप्त करते हैं। जंग जंग वापी स्मरणम तजंते कलीवरम सदा तद्भाव भाग्य कुंते हो। भागवत में भी प्रमाण है। भरत महाराज हिरण्यशिशु के प्रति आसक्ति होने के नाते हिरण की चिंतन करते करते शरीर छोड़ दिया और दूसरी जन्म में उसको हिरण जन्म मिला। प्रमाण है। मेरे कहने की तात्पर्य है गुरुदेव ने यह कहा जी जीवन के उद्देश्य यही है वृंदावन धाम और भगवान के रसमाधुर्य लीला के वृंदावन के स्मरण करें। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने नित्य परिकरों के साथ यह दिव्य लीला आदि प्रकाशित किया। अनुग्रह भक्तानां मानुषम देवाश्रितम, भगवान अनुग्रह करके कृपा करके नित्य गोलोक वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ यह भौम वृंदावन धाम में प्रकटित हुए। क्यों? कहते ऐसे लीला को जब प्रकाशित करते हैं और इसी कथा को कोई श्रवण करे, कीर्तन करे, स्मरण करे और उसमें तन्मय हो जाए, वो मेरे दिव्य धाम को प्राप्त कर लेंगे। गीता के वचन भगवान कहते हैं यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, मेरे ऐसे एक दिव्य धाम है, अलौकिक धाम है, जो मेरे दिव्य धाम के प्राप्त करने के साथ में जीव और इस संसार में पुनः जन्म ग्रहण नहीं लेते हैं। जानते देवा व्रता देवानो पितृयांत्री पितृव्रता भूतानि यन्ते भूतेज मत जाजिनो विमाम, जो जानती देवा व्रता देवानो जो दूसरी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में चले जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतलोक में चले जाते हैं। जानती देवा व्रता देवानो जो पितरों की उपासना करते हैं पितृलोक में चले जाते हैं। किंतु मेरा ऐसे दिव्य धाम और मेरे उपासना में से मेरी धाम के चले जाते हैं। तो अंतर क्या है? बोले पितृलोक, देवलोक, भूतलोक, जितने भी लोग कहा गया ये सब अनित्य कहा गया और उस लोगों के जाने के पश्चात पुनः ही संसार में आना पड़ेगा। ते तुम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, यह तक कि आप ब्रह्म भुवनो लोका पुनर्वर्तिनो सो अर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक यानी सप्तलोक में कोई पहुंच जाए, ब्रह्मा के धाम कहा जाता है सप्तलोक, उसके पुनः इस संसार में आना पड़ता है। किंतु मेरे ऐसे दिव्य धाम, उस दिव्य धाम में कोई एक बार पहुंच जाए और पुनः आना नहीं पड़ेगा। और वो दिव्य धाम की ऐसे सुंदर वैकुंठ से ऊपर धाम कहा जाता है राम धाम, रामचंद्र की धाम अयोध्या, उसके ऊपर द्वारिकापुरी धाम और उसके ऊपर मथुरा और उसके सर्वोपरि गोलोक और गोलोक के सर्वोपरि सर्वोत्तम जो कर्णिका स्वरूप जो धाम कहा जाता है वो कहा जाता है वृंदावन धाम कहा जाता है। जिस हमारे ब्रह्म संहिता में वृंदावन धाम की इतने सुंदर रूप में वर्णन किया, जैसे एक प्रस्फुटित कमल की भांति है कर्णिका, कर्णिका माने कमल की बीच में जहाँ पर केसर के द्वारा सुरंजित होता है, सुगंधित होता है, जिसमें मधुमक्खी उसके सुगंध के मकरंद के मधु के जो आस्वादन करते रहते हैं, वही धाम को कहा जाता है वृंदावन धाम, जहाँ पर कृष्ण अपने परिकरों के साथ गोप गोपी संघावृतम
गोप गोपी के साथ जहाँ पर विराजमान होते हैं, अनेकों मधुर लीला रस आदि आस्वादन करते हैं और भक्त के आस्वादन कराते हैं। वह नित्य जो धाम श्री राधा जुगल की सेवा की परिपाटी हमारे भागवत में ही दर्शन कराया, जिसमें अमल पुराण श्रीमद् भागवत ये दर्शन कराया है। द्वादश स्कंद श्रीमद् भागवतम, किंतु ये 10 मंजिल द्वादश स्कंद युक्त श्रीमद् भागवतम माने 12 मंजिल माना जाए है। और उस 12 मंजिल में 10 मंजिल जो है वो किसी के सर्वोत्तम कहा गया है, क्योंकि उसमें भगवान ऐसे सुंदर लीलाओं की रचना की, अर्थात दशम स्कंद दशमम श्रीमद् भागवतम लक्षितम परमक्ष परम अक्ष धाम, वो परम जो मेरा धाम है वही वृंदावन धाम है। उसी की लीलाओं की कथा, माधुर्य की कथा हमारे जीवन की सार कहते हैं। इसलिए कहते हैं आराध्य भगवान ब्रज से तनयम तद्धाम वृंदावन रम्मा काचित उपासना ब्रजबधु वर्गिन च कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, अमल पुराण श्रीमद् भागवत इसी के प्रमाण दे रहे हैं। क्या प्रमाण दे रहे हैं? जिस प्रकार गोपियां अपने परकेत्व भावों के द्वारा परात्पर परतत्व स्वयं भगवान के लिए सेवा आदि की, वह सेवा प्राप्ति ही हमारे चरम लक्ष्य कहते हैं। वो सेवा कैसे प्राप्ति करें? न गोपियों के अनुगत्य में। गोपी अनुगत्य बिना भजी लोग कृष्ण न पाए ब्रजेंद्र नंदन। चैतन्य चरितामृत में रायनंद संवाद में कहते हैं, जब तक हम गोपियों की अनुगत्य नहीं करें, हजार भजन भी करते रहे, किंतु तो स्थान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये हमारे लक्ष्य है, इसके कहा जाता है प्रयोजन तत्व। हम जो कथा जो जितने भी बताए इसे कहा जाता है प्रयोजन तत्व। प्रयोजन माने गोल। आप पहले गुरुदेव कहते थे पहले अपने जीवन की गोल बनाओ। गोल माने रसगुल्ला नहीं अपने लक्ष्य के हम बना ले, या हम कहाँ जाना है हमें। तो ये जो मैंने कथा जितने भी अभी तक बताया, ये हमारे परम लक्ष्य हो गए। इसके कहा जाता है प्रयोजन तत्व कहा जाता है। गौड़ीय वैष्णव में 3 तत्व के ऊपर हम बताते हैं। गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में 3 तत्व है, विशेषकर एक संबंध तत्व और एक अभिधेय तत्व और तीसरी है प्रयोजन तत्व कहा जाता है। समझ में आ रहे? एक संबंध तत्व, द नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप, संबंध तत्व हम, और इसके बाद अभिधेय तत्व, प्रोसेस हाउ टू अटेन आवर गोल, और प्रयोजन तत्व। इसलिए अभी तो ये वृंदावन धाम की जितनी भी कथा श्रीमद् भागवत में बताया गया, ये हमारी प्रयोजन तत्व है। उस प्रयोजन माने गोल के कैसे हम प्राप्ति करें, इसलिए फिर आना पड़ेगा आपके नीचे संबंध ज्ञान के द्वारा। पहले संबंध ज्ञान प्राप्ति हो। ये संबंध कौन देते हैं? गुरुपाद पद्म देते हैं। इसलिए गुरुदेव के कहा जाता है संबंध प्रदाता गुरुपाद पद्म। गुरुदेव हमें संबंध ज्ञान देते हैं, और इसके बाद संबंध ज्ञान के बाद हम उस प्रयोजन वस्तु की प्राप्ति करने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं, साधन करते हैं, उसी कहा जाता है अभिधेय तत्व व भक्ति कहा जाता है। ये 3 तत्व के बहुत सुंदर रूप में दिखाया गया। अभी ये 3 तत्व के ऊपर ही हम जब पर्यालोचना करते हैं, आलोचना जब करते हैं, तो देखा जाए गीता के पास हमें आना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक गीता ऐसे एक अमूल्य रत्न है, स्वयं भगवान अर्जुन के लक्ष्य करके
सारे जीवों की शिक्षा दी। जिसमें गुरुदेव कहते थे अर्जुन भगवान के नित्य परिकर है, ना उनके मोह हो सकता है, ना उसके आसक्ति है, ना कुछ हो सकता है, किंतु तथापि भगवान अपने नित्य परिकरों के द्वारा जगत जीवों की शिक्षा दे दे रहे, जो माया की तरह उनके हृदय में एक मोह उत्पन्न करा रहे हैं। जैसे कुरुक्षेत्र रूपी रणभूमि में दोनों पक्ष उपस्थित हुए हैं, जिससे गीता के पहली श्लोक में धृतराष्ट्रवाच, धृतराष्ट्र ने संजय के कहने लगे, संजय तुम बताओ, मेरे पुत्रों और पांडवों के पुत्रों धर्मक्षेत्र रूपी रणभूमि में एकत्रित होकर के क्या कर रहे हैं? धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्सव माम का पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। यह तो स्वयं कह रहे युद्ध के इच्छा के लिए, इच्छा के लिए युद्धोत्सव, युद्ध करने के लिए तो आए हैं, तो युद्ध ही तो करेंगे, किंतु उसमें मन में एक संशय हो रहा है। यह धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्र का, क्योंकि धृतराष्ट्र की मन में एक संशय हो गया। क्या संशय हो रहा है? ये शास्त्र में कहा गया कोई धर्मक्षेत्र में चले जाए, धाम में चले जाए, उसके चित्त निर्मल हो जाता है? इसलिए धामवास करते हैं लोग। धाम में किस लिए जाते हैं? धाम पवित्र है, जहां पर संत महात्मा विराजमान होते हैं। तो चित्त परिवर्तन हो जाए। ऐसे भी कोई भी दुराचारी व्यक्ति धाम में चले जाए, धाम में रहे, उसके चित्त परिवर्तन हो जाए। इसलिए उनके संशय हो रहा है, ये मेरे पुत्र दुर्योधन आदि युद्ध करने के लिए धर्म क्षेत्र में गए, ना जाने उनके कोई चित्त परिवर्तन हो गया, बिना युद्ध से पांडवों की हस्तिनापुर दे दी। ये भी तो हो सकता है, किंतु धृतराष्ट्र की क्या चिंतन क्या है? ये कहीं एक इंच है, एक रत्ती मेरे राज्य कहीं उधार उधार ना चले जाए। भोगों की मूर्त स्वरूप है, अंध की साक्षात अंध की मूर्त स्वरूप ही कहा है। इसलिए उनके संशय हो रहा है, कहीं मेरे पुत्रों ने युद्ध नहीं करके बस उनको दे दिया राज्य, लूट करके आ जाएंगे कि पिताजी दे दिया बस, ऐसे नहीं। इसलिए बहुत उत्कंठित हो रहे, साथ ही साथ चिंतित हो रहे, क्या कर रहे हैं? अथवा ये भी चिंतित कर रहे हैं, चलो पांडव लोग तो गए हैं और धर्म क्षेत्र में पांडव लोग कहेंगे हम युद्ध नहीं करेंगे, चले जाते हैं। ये भी हो सकता है। एक ही साथ में दो वस्तु दिखाई देते हैं। क्या मेरे पुत्रों ने युद्ध नहीं करके लौट करके आ रहे, अथवा पांडवों ने छोड़ करके चले जा रहे, बिना युद्ध से हमारे पुत्रों ने जो है विजय प्राप्त कर, ये भी सुन रहे, इसलिए संशय हो रहा है। यह पर एक शब्द है मामों का पांडवस्य, मेरे और पांडवों को, यही देहात्म बुद्धि लेकर हम चलते हैं। ईशावस्य सर्वमिदं जगत् किंचन जगत्तम जगत तेन तत्र भुंजिता मागृत कस्य सिद्धनम। इस उपनिषद में करे क्या? जो सभी वस्तु भगवान की है, मेरे कुछ नहीं है, और सारी वस्तु भगवान की दी जाए, भगवान की सेवा में लगा दिया जाए। क्या ले तू आया थे, क्या ले तू जाएगा, मुट्ठी बन के आया तू, हाथ पसार के जाएगा। कृष्ण नाम तू भजले मनुआ, ये भव सागर तर जाएगा। क्या चीज लेकर के आया तुमने, और क्या चीज लेकर के जाएगा? कौन तुम्हारे साथ में जाएगा?
यहाँ पर ज्ञान वैराग्य की कथा बता रहे हैं, लेकिन गीता में तो यही से बताते जा रही है। क्या चीज लेकर के तो आया और क्या चीज लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बंद के आए। जब हम जन्म लेते हैं, उंगली बंद करके हम जन्म लेते हैं, जब हम शरीर छोड़ देते हैं, उंगली खोल करके चले, माने हाथ पसार के चले, कुछ नहीं जाता है। यही तो सत्य है। बोलना तो कितने सहज हो गया। एक काना कौड़ी हमारी गिर जाए, कहीं चले जाए, मैं तो बिलबुलाती हूँ, है? एक काना कौड़ी दान करने में बहुत कठिन होता है। इतने कंजूसी है, इतना मैं कंजूसी, एक पैसा कहीं इधर उधर नहीं है। न अपने भोग में लगाता हूं, न दूसरे की मैं सेवा में करता हूं। कंजूसी इतना हमारे पास है। जानते सब है ये हम कुछ नहीं ले नहीं जाएंगे, कुछ तो लेकर के नहीं आए, क्या भगवान की सेवा में लगा दें? इतने सहज नहीं है। वो तो अम्बरीश महाराज, श्रीवास ठाकुर के उदाहरण है। हाँ, थोड़ा ही उतना ही मैं दान कर देता हूँ जितना इनकम टैक्स बच जाए। अच्छा, बात सत्य है कि नहीं है? सरकार के दिखा है, विशेष करके इस समय में साल का अंत होने वाला है। हाँ जी भाई, है दिखाना है। मंदिर में चढ़ाएंगे 500 रुपया है और उसके रसीद लेंगे 5 लाख का। सच में ही बता दो, सुशील ऐसा नहीं करते। कोई करते नहीं करते, मैं किसको थोड़ी करता। इनको ज्यादा पैसे देते हैं, रसीद कम की देते हैं। हाँ, कहते महाराज ठीक है 500 रुपया हम दान करेंगे, रसीद हमें कितने 5 लाख का दो, सरकार को दिखा दो, हमारी इनकम टैक्स बच जाए, फंस जाएगी। आजकल इंडिया में तो हमारी गवर्नमेंट करते हैं जीएसटी इतना कर दिया, जबरदस्ती कर, कहाँ जाओ फंसो है। आप लोग तो इंडियन है, पता है कि नहीं है? मोदी सरकार अच्छी तरह से कस करके रखे हैं। कौन ऐसी है? समय संक्षेप है, 8:30 बजे खत्म करना है ना। है? एक कंजूसी था, उसके कभी कभी दान नहीं करता था, है? ना अपने कुछ खाते थे, ना कुछ पहनते थे, कुछ नहीं, बिल्कुल जो है पैसा तो उसके ढेर था, जीवन में बहुत पैसे कमाए, नहीं कभी किसी को दान नहीं करता, कुछ नहीं करता था। रास्ते में जब चलते थे उसके पीछे लोग ताना मारते, ताना समझते हो है? अरे मर करके तुम सांप बन गए, सांप है। अरे इतना तुम्हारे अथाह पैसा है, कभी मंदिर में जाना 2-1 कड़ी तो काना कड़ी तो चढ़ा देना, चढ़ाते नहीं था वो। अच्छा तेरे इधर पैसा, तू तो अपने कुछ तो कपड़ा तो खरीद करके पहन। अच्छा जूता तो एक पहना, जूता कभी पहनता नहीं, जूता पहनते तो कभी 1982 में एक जूता खरीदा था, अभी तो उसे चलता है, घिसते 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 बिल्कुल वो समाप्त हो, तो उसके पहन लिया। कपड़ा कभी धोता नहीं है, साबुन क्यों खरीदे, पानी लाते तो उसमें जो है मैला कपड़ा। हाँ भाई, आज खाता क्या था, रूखी सूखी चावल व रोटी खा लेते थे, कभी घी तो कोई खरीदना तो बहुत बात की है। चोपड़ी रोटी नाम सुनते तो अरे बाबा, पैसा बहुत है, ये बात सत्य है, हम भी देखा बहुत लोग। इसलिए लोग उसके हंसी मजाक से उसका नाम रख दिया क्या, दान चांद। दान तो नहीं करता था, तो नाम रख दिया क्या, दान चांद है। चलो लोग हंसी मजाक करके कहते अरे दान चांद आ रहे हैं, दान चांद आ रहे हैं। दान तो नहीं करता था, तो नाम रख दिया था। जैसे किसी को आंख नहीं है, अंधे के नाम रख दिया क्या, कमल लोचन। हाँ चलो, एक दिन गंगा सागर के समय आ गया, सब लोग गंगा स्नान में जाते हैं। उसकी पत्नी कहने लगी जाओगे गंगा स्नान करके आओ। बोले गंगा स्नान नहीं, मैं नहीं जाते। अरे मन सच्चा तो कोठरी में गंगा, कहते ना, कबीर की कथा है, कोठरी में गंगा, मन सच्चा हो तो कोठरी में गंगा। कहाँ तो जाए, बोले क्यों, बोले जहां पर जाओ गंगा स्नान में जाओ, ये आजकल ब्राह्मण है ना, बिल्कुल घेर लेते,
है पैसा दो, पैसा पानी में खड़ा कर देंगे गंगा में, कम से कम तक 11 रुपया निकाल लेंगे तो है। एक ही नारियल 10 व्यक्ति को दिखाएंगे, आप देखा है? वही एक ही नारियल जो है, नारियल है ना, ब्राह्मण है ना, एक ही नारियल है और एक ही फूल जो है आपको देंगे। आपके पूजा करने के बाद वो पानी में डाल देंगे, फिर उठा करके फिर दूसरी गाय और इसी पूजा करो। एक गाय दान कर दो। ऐसे गाय देनी दान करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप जितने भी कंजूसी करो कम से कम 11 रुपया तक करो। अरे 11 रुपया 11 पैसा करो, किस करने पड़ेगा। इसलिए दानचांद बोले मैं गंगा स्नान नहीं करता हूँ, मन सच्चा तो कठिन तुम्हें गंगा कहते नहीं रुक, मन सच्चा तो कठोरी में गंगा। क्या जाना है, जाओ तो गंगा स्नान में जाओ। ये ब्राह्मण लोग, आजकल ब्राह्मण लोग तो बिल्कुल पकड़ लेते हैं पैसा 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 है। अरे कोई संत महात्मा जा स्तव स्तुति करे है, स्तव स्तुति भी करने नहीं देंगे। महात्मा जी पैसा दो, पैसा जब तक नहीं दोगे तुमको ऐसे हिलाते रहे स्तुति करो। बोले अरे महात्मा तुम स्तुति करो, हमें तो कम से कम 5 रुपया दे दे, 2 रुपया दे दे, फिर तुम स्तुति करो ना। कहने का अरे ब्राह्मण ठाकुर मेरा स्तुति हो जाए। अरे नहीं और भी बड़ा जोजमान आएगा ना, तू एकला साले, तू एकला है क्या, अकला है क्या, गाली भी देंगे आपको मीठा मीठा। गया कभी मुतरा चलिए ना, विश्राम घाट में चलिए, आप यदि कहा हाँ आप देंगे, आप 2 मिनट है वो तो भी गाली देंगे। ब्रज की गाली जानते कि नहीं जानते? इतने गाली देंगे, मीठा मीठा गाली देंगे हैं। तू अकेला है क्या और मेरा जुजमान नहीं है क्या, देना है तो दे दे हैं। मैं ब्रज में बताने भाई सच में बता दे, जब तक तुम पैसा नहीं तब तक वो जाएंगे। तो जान कहने लगे भाई गंगा स्नान कराने घर में। किसी को पत्नी बार बार जब कहने लगी चलो जीवन में तो गंगा स्नान कर ही लेता हूँ, जीवन में तो करना चाहिए तो कम से सब तीर्थ तो बार बार गंगा स्नान कम से कम एक बार तो गंगा स्नान करो। तो दानचांद ने क्या कि प्रातः काल में उठे, बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में है, थोड़ी अंधेरे में, काल जी अंधेरी थी ना, कुआरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। दीदी बोल रही आज चल पड़े, चलते चलते भाई उनके घर से गंगा स्नान जाना है कितने 25 किलोमीटर याद रखना है, पैदल चले गए। आज पैदल पैदल गए, पैदल पैदल चले गंगा स्नान में गए, देखा तो बहुत लोग स्नान कर रहे हैं। ये घाट में स्नान नहीं करेंगे, मुख्य घाट में स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारे पांडा लोग पकड़ लेंगे। ऐसे स्थान में जाए जहाँ निर्जन स्थान हो, कोई भी व्यक्ति नहीं है। देखा गया ऐसे निर्जन स्थान मिलकर मुर्दा के घाट, घाट पर मुर्दा जलाती है ना, मुर्दा घाट, मुर्दा घाट में गया भाई। उधर भी देखा क्या 2-4 कुत्ता भी उसके पीछे पड़ गया, है तो कोई नहीं है। उस दिन भगवान की इच्छा से कोई मुर्दा जलाने को नहीं आया, किंतु सब कुत्ता वहां पर घूमने लगे, कुत्ता भी उसको भोगने लगे हैं भाई। उठ के मारे किसी तरफ से गंगा में चले गए स्नान करने के लिए। अच्छा चलो, एक डुबकी लगाई, दूसरी डुबकी, तीसरी डुबकी लगाई, एक ब्राह्मण प्रकट हो गया। ब्राह्मण बोले दानचांद दक्षिणा स्नान पर थोड़ी कर। बोले तू इधर आ गया, अरे इधर तो कोई नहीं है रहता है। देख वो ब्राह्मण कोई नहीं थे, संग भगवान याद रखना, बाद में बताएंगे। अरे हाँ देखो हम लोग इस घाट में तो सब हम ब्राह्मण अपने अपने भाग करके रखे है। इस ब्राह्मण घाट में ये ब्राह्मण रहेगा, ये मेरा बारी है, ये मुर्दा घाट में कोई नहीं आता है, ये मेरा घाट है। इधर तो लोग मुर्दा जला करके चले जाते हैं, छाई भस्म फेंक करके जाते हैं, कोई यहाँ पर स्नान करने के लिए आते नहीं। तो जैसे ऐसे बिरला व्यक्ति कभी आ जाते। देखो हाँ, ऐसे व्यक्ति जब आ जाते ना, उससे मेरा 1 साल की पूरा इनकम हो जाता है। तात्पर्य क्या है, मैंने तू ऐसे दान दे मेरा पूरा 1 साल के खर्च हो जाए, खर्च हो जाए। दानचांद बोले मैं दान फल नहीं करते, मैं नहीं देता। अरे देख कुछ तो देख एक काम कर, ज्यादा पैसा नहीं, एक गो दान कर दे, गाय दान कर दे। बोले कितने पैसा लगेगा? 60,000 रुपया। हाँ
60,000। 60 पैसा के बात नहीं करते, 60,000। भाई इंडिया के गाय आपके इधर के निकाल है, हम नहीं देते। अच्छा एक काम कर, देख मेरी पत्नी अभी बच्चा के जन्म देने में, उसकी छोटी बच्चा है ना, उसके दूध के लिए थोड़ा व्यवस्था कर दे, ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, 30,000 रुपया दे दे, थोड़ा थोड़ा महीने महीने में बच्चा के जो दूध की व्यवस्था कर दे। हाँ 30,000, 30 पैसा के बाद 30,000 कहां से आ? अच्छा छोड़, धीरे धीरे करना। अच्छा फिर एक काम कर, 11 रुपया दे, मैंने 1 रुपया भी नहीं देंगे। अरे इतने ताना हिंसा करते 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 तो बोले मैं नहीं दे। ब्राह्मण बोले अच्छा तू एक काम है, तू नहीं देना तू लेकर के जा, दान देना नहीं है तो दान लेकर के जा। बोले दान लेकर के जा मतलब क्या है? अरे मेरे पास से लेकर के जा, तेरे पास है नहीं पैसा, तू बता रही। वो भी सचमुच वो पैसा लेकर के नहीं है, वो जानते हैं यदि मेरे पास पैसा रहे तो ये ब्राह्मण लोग कभी छीन भी लेता है जबरदस्ती करके। भाई आप जाओगे ना है, एक पैसा भी चलो ना, 3-4 ब्राह्मण हाथ पकड़ लेंगे, ये बोले मुझे चाहिए भैया मुझे चाहिए। मैं सच करूं, जगन्नाथ मंदिर में हम गए गुरुदेव के साथ, अंदर पैसा चढ़ाना है पंग, उसके ऊपर वो मंदिर वो ठाकुर जी पे पड़ जाए, जगन्नाथ पे पड़ जाए, वो ब्राह्मण ले नहीं पाएंगे, उनके नियम होता है, वो पूरा जाएगा ट्रस्ट में है। और जब तक वो ठाकुर जी के ऊपर नहीं पड़ने ना, गए हैं कभी अंदर पैसा चढ़ा देखा आपने ब्राह्मण का खेल है? मेरा बहुत देर, मैं बहुत साल की बात है। जो पंडित जी लेके गए थे वो हाथ में से पैसे लेके एकदम गायब हो गए, नजर ही नहीं कहाँ चले गए। अरे भाई देखो, आप पैसा चढ़ोगे ना बिल्कुल आपके हाथ कैसे पैसा पड़े, पैसा पड़ने नहीं देंगे, उनके नियम होता है। पैसा नीचे पड़ जाए है, जगन्नाथ जी के जो अंदर में जाते हैं ना, बिल्कुल जो मुख्य जो गर्भगृह जिसको कहा जाता है, गर्भगृह में समझ जाते हैं जिस भी से लोगों के ले जाते हैं। हम याद है गुरुदेव के साथ हम गए थे है? उस समय तो 5 रुपया की बात मैं बता रहा हूँ, 5 रुपया के नोट 10 रुपये के नोट थे भाई, ऐसे हाथ को पकड़ है, गिरने नहीं देंगे तुम। मैं किसी तरह से मेरा तो पैसा जो 5 रुपया तो जगन्नाथ ऊपर गिर गया, वो गाली देने लगे वो भी कम नहीं है? तो इसलिए तानचंद विचार किया मैं पैसे नहीं ले जाऊंगा, जितने भी जो होगा वो पैसे लेकर के नहीं आया। तो इसलिए ब्राह्मण कह रहे हैं तुझे देना नहीं है लेकर के जा। बोले क्या लेकर? उधार लेकर के जा। क्या बोला? देना थी तुम्हारे पास यदि उधार लेकर के जा। बोले उधार मतलब लोन, कभी दे देना, उसमें क्या बात है? अभी नहीं है, अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे घर में पहुंच ही जाऊंगा। दानचंद विचार करने वाले, ये ब्राह्मण तो छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, 1 पैसा दिया, 1 पैसा उधार, ब्राह्मण से 1 पैसा उधार हो गया, वचन दे दिया ना। कि दानचंद विचार करने वाले कहाँ 25 किलोमीटर कौन जाएगा? उस समय थोड़ी जीपीएस थोड़ी था, मेरे घर कहीं कौन सा जी है, वो कहाँ पूछ पाएंगे मुझे, तो कहाँ भी 1 रुपया 1 पैसा के लिए कोई जाता है? अच्छा, इसलिए 2 मुख होता है ना, 2 माइक होता है, इधर बोलते हैं उधर। देखो इसलिए वो कहते हैं वो क्या करने लगे। तो ब्राह्मण ने क्या बोला, यदि आपके पास एक काम कर, देना नहीं है तो लेकर के जाओ। क्या लेकर के जाओ? उधार लेकर के जाओ। उधार तो ले सकते हैं, बाद में दे देना, कोई बात नहीं, मैं स्वयं पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पास। ब्राह्मण ने कहा। दानचंद विचार करें, 1 पैसा के लिए 25 किलोमीटर कौन जाएगा? है कैसे मुझे पता नहीं था, जिस समय भगवान को पानी पाद जब कहीं था, पैर नहीं है वो चल पड़ते हैं। मैंने कहा वो साधन थोड़ी ब्राह्मण था, दानचंद के पता नहीं था। चलो दानचंद अच्छा ठीक है 1 पैसा दे देंगे। स्नान करके चले गए, घर में गए, फिर शाम हो गया 25 किलोमीटर, फिर घर में गए। चलते थे, गंगा स्नान करके घर में गए और खाने के लिए बैठे। पत्नी ने रोटी बनाई,
दाल सब्जी दूध बनाए, खाने के लिए उठा, इतने समय घंटी बजी। कल कौन है देख, दानचांद में अपने पत्नी कौन है देख। दानचांद की पत्नी दरवाजा खोली, देखा एक ब्राह्मण ठाकुर खड़े हुए। बोले दानचांद के घर है? बोले हाँ जी। क्या क्या काम है? ना वो मुझसे 1 पैसा उधार लिया था। उन्होंने बोला ये मेरे घर में आकर के ले जाना। मैं आ गया। पत्नी ने आकर के कहा क्या आप किसी से उधार लिया था? रामचंद्र बोले आ गया ब्राह्मण। अरे इतने जल्दी कैसे आ गया? 1 पैसे के लिए 25 किलोमीटर चढ़ करके आ मेरे घर को से कैसे पता चला? मैंने कहा उस समय तो जीपीएस नहीं था जैसे आपको है नहीं, ये तो कि फोन में भी जीपीएस लगा दे चलना शुरू कर देते हैं। ये जरूरत नहीं है, केवल एड्रेस दे दो, विष्णु जी का एड्रेस दे दो और मेरे पास फोन रहे ना, मैं ऐसे लगे के पास पैदल चल पहुंच जाऊंगा उनके घर में। जगह की नहीं है, जरूरत नहीं है, कार की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, पैदल तो पहुंचे। 2 घंटे लगे 4 घंटे में पहुंच ही जाऊंगा। वो तो कहे डायरेक्ट चलो मैंने तो यू अराइव योर डेस्टिनेशन बोलोगे ना। ऐसे बात सत्य है कि नहीं? क्योंकि उस समय तो ऐसे नहीं। दानचंद तो ये कैसे पहुंच गया मेरे घर? ये लोग पत्नी के बोले अच्छा एक काम करके बोल दो ये मेरे पति दानचंद जो है बीमार है। पत्नी बोले अरे झूठ मूठ क्या, 1 पैसा दे कमाने में कितना कष्ट है जानते हो तुम? घर में तब तुम बनाती रसी बनाती है, 1 पैसा कमाने में कितना कष्ट लगता है। फोकट से आता है क्या? कितना कष्ट करना पड़ता है, पसीना खून को पसीना करना पड़ता है, तब तो 1 पैसा आता है। मैं किसी को देता नहीं। पुत्री खड़े के जा बोल दो जा करके दानचांद क्या हो गया? सिक बीमार है। पत्नी भी आदमी बता दिया ये पति दानचंद बीमार है। ब्राह्मण भी कम नहीं, वो भी ढीठ है, भगवान है ढीठ है। ब्राह्मण कहने लगे ओहो देखो मैं ब्राह्मण हूं और ये मेरा यजमान है, तो गुरु शिष्य के संबंध है ना। गुरु पिता तुल्य होता है और शिष्य पुत्र तुल्य होता है। अच्छा बताओ किसी के बेटा बीमार हो जाए और उसके पिताजी घर में आ जाए, क्या बेटा के छोड़ करके चले जाएंगे? मैं यहां पर बाहर बैठा रहूंगा। एक काम करना, दानचंद के बोल देना जब तक वो दानचंद ठीक नहीं हो जाए, शरीर ठीक नहीं हो जाए तब तो मैं बाहर बैठा रहता हूं। कोई भी बात नहीं, मेरे लिए थोड़ा फलाहार की व्यवस्था कर देना। मैं ब्राह्मण ठाकुर है ना, फलाहार की व्यवस्था कर देना। 1 पैसा के लिए उसके फलाहार की व्यवस्था करो। आकर के उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मण ठाकुर करते हुए जाएंगे नहीं, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे तब तक वहीं पर बैठे रहेंगे। और बोला जो मेरे लिए फलाहार व्यवस्था करो, निर्जला नहीं फलाहार की व्यवस्था करो। दानचंद बोले अच्छा तो एक काम कर, जाकर के बोल दे दानचंद मर गए। पुत्र बोले ऐसे कैसे बोल दू मर गया? आत्म जीवित हो, अरे बोल दो ना, अरे गीता में तो भगवान तक मदन गीता पाप धर्म परिकल्पते, मेरे लिए से जी कोई पाप करता है वही पुण्य है। पति देव भगवान, पति तो भगवत स्वरूप है ना। इससे तेरा अर्थ क्या है? बोल दे। अरे चला जाए, कोई मर गया है उसके ऋण चुका थोड़ी होता। आप बताओ। पुत्री बोले कैसे बोलूं? अरे जा मैं जो बोल रहा हूं बोल, जाके बोल। पुत्री भी ऐसे ही है, आकर के बोले मेरे पति देव तो मर गए, दानचंद मर गया। ब्राह्मण भी ठीक है, ब्राह्मण भी कम नहीं है। हाँ मेरे पुत्र मेरे शिष्य जजमान मर गया। देखो ये जो है दाह संस्कार में मैं करूंगा, अंत्येष्टि क्रिया मैं ही करूंगा। भाई भगवान कम नहीं है,
भाई औपानी पाते तो कहना बड़ी जल्दी जल्दी जाके सारे गांव में सबके घर घर घूर के बोल करके आया। ये भगवान है थोड़ी हमारी बात की है। 1 सेकंड में सब गांव में जाकर के हमला करके दानचांद मर गए। अरे गांव वाले सब हल्ला करते हुए आ गया, अरे दानचांद मर गया। और दानचांद बोले क्या करिए, जानबूझ करके सांस को रोक करके लड़े। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सांस को रोक लिया। गांव वाले यहां करके बोले हे चल इसके शरीर के दाह कर देते हैं। पत्नी बोली नहीं, अरे मेरे पतिदेव मरे नहीं है, ये तो सांस रुक करके गए। दिखा की बात करते हैं, स्त्री जाति है, माया मोह में पड़ी हुई है सब है। आज इंडिया में जाओगे ना, पति मारे तुम्हारी मैं तो विदा हो गया। और इधर ऊपर नहीं, मेरे पतिदेव तो मरी नहीं है, जिंदा। गांव वाले बोले ये स्त्रियां तो ऐसी स्वभाव ही होती है, इंडिया की स्त्री तो ऐसे स्वभाव है कि नहीं है? क्या गांव वाले ने जबरदस्ती लेकर क्या दिखा तो स्वयं भगवान भी वैद्य के रूप में आ गया, करे हाँ ये मर गया। वही भगवान ने अनंत उद्धार कर सकते, एक इस रूप में आ गए डॉक्टर के बदले। भगवान भी जानते हैं तो इसको एक करके रखे हैं, तथापि कहते हाँ मर गए, लेकर के गांव वाले सब लेकर के और संसार में लेकर के आए, लकड़ी के ऊपर ना उठ के लेटा दी। भगवान कहने लगे, माने वो ब्राह्मण कहने लगे गांव वाले सब हट जा, मेरा पुत्र है ये, मेरा पुत्र है, मैं ब्राह्मण हूं, ये मेरा जजमान है, इनके दाह संस्कार के अधिकार केवल मेरा ही है, हट जाए। भाई भगवान है ना, उनके बात सुनते सारे गांव बोले तो हट गया। मैं अब अग्नि संस्कार करूंगा इसलिए। भगवान मैंने ब्राह्मण कहने लगे, अरे दानचांद तू सुन, तू तो मरे नहीं है, तुम तो जिंदा हो। अरे एक पैसा के लिए तूने इतना ही क्यों कर रहे हो? तो एक काम कर, मैं भगवान हूं, मेरे स्वरूप के दर्शन करके ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग तरसते रहते हैं, ध्रुव आदि कितने कठोर तपस्या किया, देख मेरे स्वरूप के दर्शन कर। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं स्वयं भगवान हूं। अरे कितने बड़े बड़े लोगों को मैंने पछाड़ दिया, तू ऐसे से कंजूस है, तुम कोई पछाड़ नहीं पाया, मैं तुम पराजित कर नहीं पाया, क्या बताऊंगा था? एक पैसे में तो मरने की चिता में जलने की तैयार है? अच्छा ठीक है, तेरे निष्ठा, गंगा स्नान तुमने किया, फल तो बेकार नहीं जाएगा। यहां पर तीर्थ स्थान गंगा स्नान की फल बेकार नहीं जाएगा। मैं प्रसन्न हूं, मेरे स्वरूप के दर्शन कर, देख मैं भगवान हूं, मेरे चतुर्भुज के दर्शन कर। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं भगवान हूं। दानचांद जाने में अच्छी बात है, एक बात आंख खोल करके देखे कि वो ब्राह्मण है कि भगवान है। आंख खोल कर देखा भाई ब्राह्मण है, फिर आंख बंद कर दिया। पैसा देना पड़ेगा नहीं, पैसा। फिर भगवान कहने लगे ब्राह्मण, अरे मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं भगवान हूं, मेरे चतुर्भुज दर्शन कर। फिर अच्छा एक बार भगवान के दर्शन कर रहे तो आंख खोले, देखा तो वही ब्राह्मण है। भगवान बोले तो एक पैसा के लिए तो इतने लड़ सकते हो, इतने कंजूस? ठीक है, मैं प्रसन्न हो गया, चल तेरा निष्ठा जो कुछ भी है, तेरे गंगा स्नान की फल ही तो प्राप्त होगा। भाई शास्त्र में कहता है किसी भी प्रकार से कोई गंगा स्नान करे व्यर्थ नहीं जाएगा। गंगा की महिमा तो अपार, कौन वर्णन कर सकते हैं? तो अंत में भगवान कहने लगे, तू मेरी वर मांग, मैं प्रसन्न हो गया। तेरा कंजूसी जुड़ा निष्ठा जो है ठीक है, कोई भी बात नहीं, वर मांग। उस समय वो कहने लगे, दानचांद कहने लगे, यदि आप स्वयं भगवान हो, चतुर्भुज नारायण हो, मुझे इतना ही मुझे कृपा कर वर दीजिए। मैं जो आपको वचन देता है 1 पैसा दान देने के लिए, वो ऋण से मुझे मुक्त कर दीजिए।
ये देखो, अरे उनके भगवान के निकट क्या मांग लेते हैं? वो क्या मांगा? एक पैसा चोरी किया तब से मुक्त करा। बोलो वृंदावन क्या है? एक पैसे के इतने कंजूसी को होता है, क्योंकि भगवान के स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाते। इस आइए कथा में है, गीता में जब भगवान तो यही कहते जा रहे हैं, जब तक हमारे देहात्म बुद्धि रहता है तब तक सारी अनर्थ आकर के घेर लेता है। देहात्म बुद्धि समझ में आ रहा है? पढ़ी कंसेप्शन। देहात्म बुद्धि क्या है? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं धनी हूं, मैं विद्वान हूं। जब धर्म में समस्त देहात्म बुद्धि के बारे में पढ़ो, आप जब धर्म अध्ययन करते हो आपको पता है देहात्म बुद्धि क्या है। इस शरीर में आत्मबुद्धि करना, उसके देह आत्मबुद्धि कहा जाता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान के अंश दास, मामई वंश जीव लोके जीवो भूत सनातन। गीता में भगवान यही उपदेश देते जा रहे हैं। गुरुदेव कह रहे, स्पष्ट रूप में यहां पर कह रहे, गीता में जितने भी उपदेश देंगे उस उपदेश के 5 स्तर में विभाजन करके दिखाया। एक साधारण उपदेश, एक विशेष उपदेश, समझ में आ रहे हैं? एक साधारण उपदेश जनरल नॉलेज, और एक विशेष उपदेश स्पेशल नॉलेज, और एक गुच्छ उपदेश, गुच्छतर उपदेश, गुच्छतम उपदेश, सर्व गुच्छतम में परम वचन। ये गीता के उपदेश के हम ऐसे विभाजन कर रहे हैं। गुरुदेव जी उपदेश लिखे, ये पहले जो कहा जाता है देहात्म बुद्धि हमारे कैसे चले आए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर और आत्मा दोनों एक नहीं है, अलग अलग वस्तु है। ये शरीर है, शरीर में जो रहती है उसे कहता है शरीरी कहा जाता है। जिस प्रकार हम गृह नहीं है, हम गृह है। समझ में आ रहा है? जो गृह में जो निवास करते उसे गृह कहा जाता है। गृह एक वस्तु नहीं है, किंतु हम लोग उसके एक ही मानते जा रहे हैं। हम शरीर नहीं है, हम शरीरी है। और ये शरीर एक दिन विनाशी है, किंतु शरीरी आत्मा अविनाशी है। समझ में आ रहा है? गीता की जो साधारण विचार करते जा रहे हैं, तुम जिसके लिए माया मोह में प्रयोग कर रहे हो, कि अर्जुन की माया मोह किस लिए हुआ? जैसे मैंने बार बार कहा था, सेनोर उभयस्तव रथों को स्थापित, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को स्थापित करो। हे केशव, हे गोविंद, मैं तो देखूं दोनों तरफ में कौन कौन योद्धाएं आए हैं। एक बार मैं निरीक्षण कर लेता हूं, देख लेता हूं। अर्जुन की इच्छा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण उस रणस्थली में, युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापन कर दिया। कहते देखो अर्जुन, इस तरफ तुम्हारे भाई पांडवों जो लोग आए हैं और राज युद्ध करने के लिए, और इस तरफ कौरव लोग आए। ये भीष्म पितामह, भगवान एक अंगुली निर्देश करके कह रहे किसके साथ तुम युद्ध करोगे? देखो ये भीष्म पितामह, यह द्रोणाचार्य तुम्हारे गुरु, ये कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, एक अंगुली निर्देश करके कह रहे इन लोगों के साथ तुम्हें युद्ध करना है। बस इतने सुनते अर्जुन के शरीर कपने लगे। प्रथम अध्याय में, गीता के प्रथम अध्याय, जैसे कि विषाद योग है, अर्जुन के पास पूर्व स्मृति आ गया। क्या पूर्व स्मृति? जिस भीष्म पितामह की गोद में मैंने बैठा था, जिन्होंने मुझे खीर खिलाई छोटे बचपन में, है अपने कपड़े के द्वारा मुझे, स्नेह अंचल के द्वारा मुझे पालित पोषित किया, पालन पोषण किया, उसके ऊपर बाण कैसे चलाऊं? जिस गुरुदेव मुझे इतने स्नेह करते थे, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र केवल मुझे ही सिखाया, और शतम केवल तो छोड़ने के दिया, उसके एक करने के बोले
कंट्रोल करने की भी नहीं दिया था, वो तो जबरदस्ती दिया था, अश्वत्थामा को दिया था। ये महाभारत में लिखा है? अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य ने सब कुछ कर दिया, और उस गुरु के शक्ति पर है, चेस्ट पर मैं कैसे मान चढ़ाऊं? पूर्व स्मृति आंख से आंसू आ गए। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब खड़े हैं। अर्जुन के एक दिखा रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। क्या आत्मविश्वास? कि मेरे हाथ में कंडील है, मेरे पास कृष्ण है। जत्र पार्थ धनुर्धर, जहां पर पार्थ धनुर्धर अर्जुन, जहां पर कृष्ण, जहां पर कंडील, श्री विजय। गीता भाग में लिखा है ना। तो अर्जुन के ये भी एक अहंकार ही है कि मेरे विजय प्राप्त होगा। ये तो अच्छी बात है। साधक के लिए तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस द बेस्ट कॉन्फिडेंस है। आत्मविश्वासी जो है वो सबसे शक्ति हमें वर्धन करते बढ़ाते हैं। किंतु दूसरी पक्ष भगवान ने क्या कहा? अर्जुन का भी विषाद आ गया, ये लोग के मालूम कैसे? इसलिए अर्जुन क्या करे? नौकांके विजन कृष्ण नो राज्य सुखानी चो। हे गोविंद, मुझे राज्य नहीं चाहिए और विजय भी नहीं चाहिए। जैसे पुत्र स्नेह शिलमा, जैसे कोई क्रोध से अपने पुत्र कन्या के शासन भी करते कि नहीं करते मां? उसी प्रकार कृष्ण भी क्रोधित होकर कहने लगे, अर्जुन तुमको किसने बताया तुम्हारे राज्य प्राप्ति हो जाएगी? किसने बताया तुमको तुम्हारी विजय हो जाएगा? मैंने आज कहा था क्रिकेट खेलने के जाए, फुटबॉल खेलने के जाए, कितने बड़े बड़े सब खिलवाड़ जो है वो हार करके आ जाते हैं, और साधारण खिलवाड़ वो विजय हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड मैच होता है ना, क्या है? वर्ल्ड कप। ये रणभूमि है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तुम्हारे ऊपर नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, तुम करो, फल तो मैं देने वाला। तुमको किसने कहा तुम्हारी जय हो जाएगा? किसने कहा तुम्हें राज्य प्राप्ति हो जाएगा? क्या तुम्हें विश्व पितामह के गिरा सकते हो? 10 दिन के लिए जिन्होंने प्रधान सेनापति के पद प्राप्त किया, क्या तुमको गिरा सकते हो? जब तक प्रधान सेनापति रहेगा तब तो तुम्हारी विजय नहीं होगा। भले तुम्हें 8 सैनिकों को तुम मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि जब तक रण क्षेत्र में, युद्ध भूमि में प्रधान सेनापति रहेगा तब तो तुम्हारी विजय नहीं है। क्या तुम्हें भीष्म पितामह को तुम गिरा सकते हो, मार सकते हो? आप बताइए, मार सकते हैं? क्यों? जिन्होंने रक्षा कवच पहनी हुई है। क्या रक्षा कवच? इच्छा मृत्यु है। अरे भगवान भी कह रहे हैं मेरे सुदर्शन चक्र भी लौट करके आ जाएगा, नहीं तो उनके तो वरदान व्यर्थ हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र भी लौट करके आ जाएगा। तुम जो सोच रहे हो, तुम्हारे सोचना इतने सहज नहीं। क्या गुरु द्रोणाचार्य को तुम हरा सकते हो? गुरुदेव को क्या ये देख लो, कर्ण इसके कुंडल है, कानों में कुंडल और वक्षस्थल में कवच। क्या तुमको गिरा सकते हो, मार सकते हो? तो तुम्हारी विजय के तुम की भी करें। नौकांके विजय कृष्ण न राज्य सुखानी च। बोलना तो बहुत सहज हो जाता है। तुम अपने जो सोच रहे हो मेरे विजय प्राप्त हो जाएगा, तुम क्षत्रिय है, तुम्हारे स्वभाव क्षत्रिय है। तुम तो अभी कुछ समय के लिए कुछ ऐसे वैराग्य दिखा रहे हो, क्षत्रिय स्वभाव वाली होता है, उसके लक्षण दूसरी होता है? जैसे अभी विष्णु प्रभु ने श्लोक कहा ना, जो विद्वान व्यक्ति जो होता है वो शोक नहीं करते हैं। आने वाली चीज जाने वाली चीज तो आता जाता रहता है?
इस संसार में हमारे शरीर नष्ट है, नष्ट होने वाला है, बुढ़ापा आएगा, एक दिन हम शरीर छोड़कर ही चले जाएंगे, जाएंगे नहीं जाएंगे, सभी चले गए, हमें भी जाना पड़ेगा। किंतु हमारे आत्मा के बारे में सोचो, आत्मा के न जाते न मृत्यु कभी भूता भूता अजो नित्य शाश्वत न हन्नते हन्नमाने शरीरे। क्या जो वृद्ध पितामह को देख रहे हो दाढ़ी वाले, क्या वही आत्मा है न शरीर है? देखो गीता में यही तो कहती है, भगवान जो उपदेश देते जा रहे हैं हम लोग के लक्ष्य करके, जिसके लिए हम सुख प्रकाश करते हैं। आत्मा की मृत्यु नहीं, जन्म नहीं, मृत्यु है, उसके लिए सुख क्यों है? शरीर तक चले जाते हैं, शरीर ध्वंसशील है, तुम मारो अथवा नहीं, वो तो मरे, मरा हुआ एक है, केवल आत्मा है। हमारे शरीर हाथ पैर नाक की काम करते हैं, आत्मा चली जाए एक पड़ा रहेगा, सब लटक जाएगा। तुम किसको मारोगे ये तुम तो बताओ। इसलिए कहता है आत्म अनात्म विवेक बुद्धि ज्ञान आ रही है पर उठाओ। तुम इस धर्म क्षेत्र में आए, तुम्हारे लक्ष्य नहीं है विजय और राज्य प्राप्ति करना। गीता की कथा सुनो, हम जब गीता का अध्ययन नहीं करेंगे वो राष्ट्र हमारे कुछ काम नहीं करेगा। फाउंडेशन देते दे रहे हैं, तुम जो कह रहे हो वो आत्मा के बारे में सुनो, वो क्या चीज है, उसके लिए क्यों सुख करेंगे? तुम युद्ध क्षेत्र में आए पर कर्तव्य पालन करो, जय विजय की भाव चिंता मत करो। ये भूमि क्या है? इसको ये कर्म भूमि है। कर्मण्यवादिका रस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम अपने कर्म करो, कर्तव्य साबित करो, सत्कर्म करो, असत्कर्म नहीं, सत्कर्म तुम करो। तुम्हारे कर्म क्या है इसमें? युद्ध करना। क्यों युद्ध करना है? मैंने आज प्रातःकाल में कहा था, प्रतिशोध नहीं, प्रतिशोध समझते हैं, रिवेंज नहीं। जो हमारी पुत्री को उन्होंने अपमान किया इसलिए मैं रिवेंज ले रहा हूं। क्या दूसरे की पुत्री को अपमान करते हो? नहीं करते कुछ बोले ऐसे नहीं। नारी जाति के सम्मान को तुम्हें स्थापित करना ये तुम्हारे कर्तव्य है। तुम्हारी पुत्री द्रौपदी को अपमान किया इसलिए तुम युद्ध करने के लिए आए हैं, ये तुम्हारा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? एक तो द्रौपदी तो एकमात्र क्या है? समग्र नारी जाति के एक सिंबल मंत्र। समझ में आ रहा है? आज द्रौपदी के काल तो दुष्ट दूसरे की करेगा कि नहीं करेगा? समझ में आ रहा है मेरा बात? आज द्रौपदी के उन्होंने अपमान किया। प्रातःकाल में महाभारत की कथा मैंने सुना था, जिस समय द्रौपदी अपवित्र अवस्था में थी, दुशासन ने उसके केस को पकड़ कर लिया, जैसे शिकारी जैसे पशु के शिकार करके जैसे उसके टांग खींच करके लटक करके लाते हैं, ठीक उसी प्रकार द्रौपदी के क्या किया? केस पकड़ कर घिसकते हुए लटकते हुए लेकर गए। और उसमें यही दुर्योधन कहा था, इसके नंगा करके मेरी छत के थाई पर जगह पर बैठा था। यही कर्ण कहा था, बेस्सा है ये कुलवधु है, उनके ऊपर ऐसे नहीं जाते। आज इनको नहीं छोड़ दिया जाए, दंड नहीं दिया जाए, अपराधी को दंड नहीं दिया जाए तो समाज संस्कार नहीं होगा। जिससे भगवान का जब परित्राण साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि जुगे जुगे। मैं स्वयं करता हूं अथवा मेरे परिकर की तरह कराता हूं, शक्ति तुम्हें दे दे दो, तुम्हारी कर्तव्य उसी प्रकार है। दुराचारी दुष्ट दंड देना तुम्हारे कर्तव्य है, रिवेंज नहीं, प्रतिहिंसा नहीं, प्रतिशोध नहीं।
है, अन्याय के विरुद्ध में उंगली उठाना। समय हो गया तो 10-5 मिनट बोलो, छोड़ दो। गीता की वचन है, देखो गीता की कितने सुंदर कथा बोलते जा रहे हैं। हम जीवन की इसी प्रकार रखें, ये नहीं है एक दुराचारी जो करते जाए और हम देखते रहे। क्या ये लोग तुम्हारे भाई को विष नहीं दिया था भीम को मारने के लिए? क्या ये लोग तुम लोग के लक्षा गृह में, लाख की गृह जो है, लाख से गृह बनता है, उसमें आप नहीं लगाए? क्या तुम नहीं जानते हो? तुम्हारे संपत्ति के लोग हड़प लिया झूठ खेल में, पासा के खेल में, है? यही शकुनी है। इनके दंड दो, अपराधी को दंड देना तुम्हारी कर्तव्य है। तुम युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी कर्तव्य है। जय विजय के लिए नहीं, राज्य लाभ के लिए नहीं, यही तुम्हारे कर्तव्य है। उठाओ, धनुष उठाओ, क्लीब के भांति, नपुंसक के भांति बात मत करो। भगवान बहुत उत्तेजित हो, देखो उसमें कहा क्लीब शब्द कहा गया, नपुंसक के भांति बात कर, तुम क्षत्रिय हो, उठाओ। है कितने सुंदर भगवान, कितने स्नेहशील मां जननी के भांति, है जैसे पुत्र के शासन करते हैं ना, बच्चा मां सुनते नहीं है ना, थोड़ा तेज शब्द से बोलना पड़ता है। तो भगवान कृष्ण और जिनके इतने स्नेह है, इतने ममता है, इतने प्रीति है, इसलिए कह रहे उठाओ, क्लीब की भांति बात करना, नपुंसक की भांति उठाओ, क्षत्रिय धनुष उठाओ, युद्ध करो। यदि को ऐसे कैसे गिराएंगे, कैसे? जैसे भगवान ने कहा दिया ना, तेरे भीष्म पितामह को कैसे गिराओगे? हैं? भगवान अंतिम में क्या कहा? तो मेरे शरण में आ जा, मैं ही सब कुछ बता दूंगा, मैं ही करा दूंगा तुम्हें। मैं भगवान हूं, कर्तुम अकर्तुम अनता कर्तुम ज समर्थ सब भगवान इति वाच्य। भगवान किसको कहते हैं? जिसको हम भगवान करके पूजा करना शुरू कर देते हैं। मैं समालोचना नहीं कर रहे, किंतु शास्त्र की कथा है। भगवान किसको कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अनथा कर्तुम ज समर्थ सब भगवान बच्चा। भगवान हो गया जो होने वाले नहीं उसको, और होने वाला बिगड़ भी देते और सृष्टि भी करते, वही तो भगवान है। ये इच्छा में तू कवच पहनी हुई है, तुम गिरा नहीं सकते हो। कैसे गिराना है मैं जानता हूं, क्यों? मैं भगवान हूं। ये गुरु द्रोणाचार्य, इसको तुम नहीं बंद नहीं कर सकते हो, किंतु इसके कैसे गिराना है, कैसे बंद करना है, ये मैं जानता हूं। ये करना है भगवान करे। इसकी इच्छा, कवच कुंडल जो पड़े हुए हैं, इसे कवच और कुंडल को कैसे उतारना है, कैसे इसको बंद करना है, मैं जानता हूं। तू मेरे शरण में आ जा। ये तो गीता में अंतिम में कहते जा रहे हैं, प्रथम चैप्टर से लेकर के अंतिम 18 चैप्टर में आ जाइए, अध्याय में। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं स्वरूपाभिभो मोक्षामि मा शुचो। सोचना सो क्यों प्रकाश करो? ये लोग मार देंगे हमारे पाप। मैं भगवान समस्त पाप से तुम्हें मुक्ति दिला देता हूं, क्यों? मैं भगवान होने के नाते मेरे पास सब अधिकार है, मेरे पास है। भाई ये संसार में गीता में भगवान भी कहते हैं, हम जन्म लेने के साथ हमारा 6 ऋण हो जाता है। देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, भूत ऋण, राज ऋण, 6 प्रकार ऋण होता है। बोले ऋण से कैसे मुक्त हो? बोले भगवान कहते गौतम मुकुंद परिहित करता हूं। मुक्तिदाता भगवान के चरण में जब आ जाते हैं, भगवान के शरण में कोई आ जाए, सब ऋण से मुक्त हो जाए। इसलिए भगवान के नाम है मुकुंद, मुक्ति ददाती जैसे इति मुकुंद है, और कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं तुम मेरा। इसलिए अंतिम भी भगवान गीता में ही कहते हैं, सर्वगुच्छतमं भुवं शृणु मे परमं वचः दृष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मनमना भवो मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे विश्वसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो ओसि मे। कितने सुंदर वचन गीता के अंतिम श्लोक आते जा रहे हैं। सर्वगुच्छतम वचन, आप समझ में आ रहे हैं? वास्तविक सत्य है। मन मना भवो, मन को
मेरी तुम समर्पित कर दो बस। मन मना, हमारे मन को संपूर्ण रूप से जो है अभिभूत कर दो, मेरी चिंतन करो। जिस प्रकार मनमना भाव कौन कर सकते हैं? सर्वोत्तम उदाहरण कौन है मनमना भाव की? गुरुदेव का है, मैं नहीं कर रहा हूँ, गुरुदेव के वचन में शक्ति है, इसलिए मैं गुरुदेव की बात कर रहा हूँ। ये उदाहरण एकमात्र गोपियां हैं। स्वयं भगवान कृष्ण उद्धव की भी बताया, एकादश स्कंद में पढ़िए आप है। अच्छा, एकादश स्कंद में स्वयं भगवान उद्धव की उपदेश दिया। देखो वो गोपियां जो तान मन मनस्का, वो गोपियां मैं मेरे प्रति कितने जो है मन के सबसे में रखे हुए थे। मदर्ते तक तो लोकी का भगवान कहने लगे उद्धव, वो गोपियां ब्रज में मेरे प्रति जो स्नेह ममता न भूतो न भविष्यति, मैं तो ब्रज के छोड़ करके जब जिस दिन से मैं आ गया, वो गोपियां मेरे लिए चिंतन और मेरे लिए बस सब कुछ करते हैं। जब से गोविंद वृंदावन छोड़कर चले गए गोपियां, अथवा कोई ब्रजवासी घर में रसोई नहीं बनाई, भागवत में वर्णन हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं। उनके सारे जो क्या बोलते हैं जहां पर रसोई बनाते हैं ना, वो ओवन से जो कहते हैं चूल्हा, स्टोव, अच्छा चलो स्टोव, चूल्हा जी। माकड़ा के जाल बन गए, माकड़ा के जाल समझते ना है, कवर दो, क्यों आग नहीं जलाई? किसी ब्रजवासी ने अपने घर में रसोई नहीं बनाई है, बहुत ही पैथेटिक है। जब से कृष्ण वृंदावन चले गए, ब्रजवासी लोग गोविंद के विरह में तड़प गए। केवल दीवार तरीफ है गोविंद दामो दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। सुखदेव सिंह जादू हने अबनने मतवन प्रलेप, प्रेम छय छनादो रुदितो क्षणमार्जनादो, गायन्ति चैनो रक्त धियोश्रुकण्ठो, धन्ना व्रज स्त्रियो उरुक्रम चित्त जानु। सुखदेव सिंह पाद कहने लगे भागवत के महाराज परीक्षित, वह ब्रजदेवियों की भावना, ब्रजदेव के प्रेम महत्व शब्द के द्वारा व्यक्त करना कदापि संभव नहीं है। देहादरिक कार्य आदि जो है, लौकिक क्रिया आदि जो है, कैसे करती थी? बोले जिस प्रकार एक कुम्हार है ना, पोटा मिट्टी से बर्तन बनाते हैं, शायद आप लोग देखे होंगे, उसके पास एक चक्का रहता है, व्हील रहता है, एक बार घुमा देते हैं, वो 10-25 बार अपने अपने घूमता रहता है, और उससे हाथ की कला के द्वारा मिट्टी के ऐसे सुंदर बर्तन बना देते हैं। इसलिए चैतन्य चलते हैं, बंगला प्यार में भी लिखते हैं, कुमारी चाक जन स्वतंत्र चला, सारे में चलते रहते हैं ध्यान। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है, शायद भागवत तो सुने हो, वर्णन होते जा रहे हैं। उनके जो आहार विहार, चलना फिरना कैसे होता था? बोले केवल एक सहानी के रूप में बस, और मन तन मन ता मन मनस्का, उनके तन मन जो कुछ भी गोविंद में है बस। केवल जोगमाया के द्वारा ही उनके शरीर संरक्षित था। भगवान कृष्ण कहने लगे वो, हे उद्धव, वास्तव रूप में उनके शरीर में नहीं है, मैं ही उनके शरीर के रूप में ही है। उनके आत्मा उनके शरीर में नहीं थे, मैं ही सब कुछ हूं। भागवत पढ़िए इसको, श्लोकों को देखिए, यदि उनके शरीर में आत्मा रहती,
भारत आत्म शरीर अब शरीर रहता है, शरीर सहन नहीं कर पाते, क्योंकि भागवत प्रेम की ऐसी वस्तु है वो कभी शरीर धारण कर नहीं पाएंगे। हम तो कहते हैं इसको प्रेम हो गया, किंतु प्रेम ऐसी वस्तु है, प्रेम कभी इस शरीर धारण कर नहीं पाए। एक साधक भाव दशा में पहुंच जाए और प्रेम दशा में पहुंचने के पहले शरीर छोड़ना पड़ता है। ये शास्त्र की वचन है, हमारे टीकाकार लिखते हैं, हम नहीं कर रहे। हम तो जिसको कहते हैं थोड़ा आंखों से आंसू आ गया बाहर ऐसे करते हैं, हम कहते हैं ये प्रेमी भक्त है, कहते कि नहीं? जिन लोग के शास्त्र की ज्ञान नहीं है कहता आहा ये देखो कितने महाभागवत है, चरण धूलि लेकर के बार बार आहा आहा सुनो तत्व दर्शन में आओ, सिद्धांत में प्रवेश करो, आदि संता तत्व साधु संग भजन क्रिया प्रणत निष्ठा रुचि आसक्ति भाव एंड प्रेम। उसके लक्षण क्या है? व्हाट इज सिम्पटम ऑफ भाव? कांत्र प्रत्यकार्तन वृत्ति मान सन्नता आशा बंधु समुत कंठा नाम गणे सदा रुचि असित गुणानुकरण कृतित्व बसति स्थले इत्तर सुराजित भावंकुरी। भाव तो बहुत दूर की बात है, भाव की क्या बताया? क्या बताया? अंकुर, द स्प्राउट ऑफ भाव मूड। भाव विकसित होना और भी बहुत, जैसे पुष्प है ना, फूल, फूल में क्या होता है? एक होता है पहले कहता है बट कुंडिया कुड़ी होता है, इसके बाद वो धीरे 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 विकसित हुई। इसलिए भाव रूपी पुष्प, वो भी पुष्प की कहा जाता है क्या? अंकुर। अंकुर समझ में आ रहे हैं? स्प्राउट ऑफ भाव। उसके लक्षण 9 लक्षण बता रहे हैं, एक्सटर्नल सिम्पटम्स ऑफ भाव। वो भी अंकुर, भाव के पूर्णता नहीं हुआ है। शांति और व्रतकालत्तम, शांति चित्त में कभी क्षोभित नहीं होता, स्थिर चित्त होता है। क्रोध के वस्तु उपस्थित होने पर क्रोधित नहीं होता है। आप विचार करते, हमें तो कोई चिट्ठी काट देना मैं बिगड़ जाता हूं। चिट्ठी तुमने काटा नहीं है, चिट्ठी को हम पिटाई करते हैं, तुमने मुझे काटा। परीक्षित महाराज को इसके उदाहरण है शांति। पढ़ो गुरुदेव की भजन रस ग्रंथ में, हम नहीं करे कुछ। खांतिर व्रत कालत्तम, समय एक क्षण भी नष्ट नहीं करे। कृष्ण कथा कृष्ण नाम छोड़ के कुछ। खांतिर व्रत कालत्तम वृत्ति मान सन्नता आशा बंधु समुत कंठा। एक ही आशा, गोविंद की कैसे प्राप्ति हो। हमें तो बहुत आशा है, अनंत आशा, अनंत कामना हृदय में पड़ा हुआ है, किंतु यहाँ पर क्या है? वृत्ति मान सन्नता आशा बंधु। मान सन्नता, लाभ पूजा प्रतिष्ठा नहीं, गले में फूल की माला दे अथवा नहीं दे, देखते नहीं। हम तो देखते हैं उसके अच्छे माला दिया, मेरे क्यों माला छोटा हो गया, मेरे सिर पर नहीं घुसा है। भाई माला कोई भी छोटा करते हैं ना, है सिर को यह तो आता ही नहीं, ये बना जाता है। और दूसरे की माला दिया बहुत गजब माला कहते हैं, और मेरे वाला माला है ऐसी, अरे कम से कम तो थोड़ा ही तो थोड़ा तो बड़ा करके, वो भी घुसा ही नहीं। मैं कैसे करती? इसलिए खंत्र प्रतिकादम वृत्ति मान सन्नता आशाबंधु, मान अभिमान के लिए कभी नहीं रखते। एक ही है गोविंद के अशास्य दास से विश्वभानु जाया, एकमात्र विश्वभानु नंदिनी श्रीमती राहल के दासित्व में प्राप्ति हो जाए, यही तो आशा है। आशा बंधु समुत्कंठा, उत्कंठा रहता है, इगारनेस, कब गोविंद में प्राप्ति हो, गोविंद दर्शन है। आशा समुत्कंठ, नाम गाने सदा रुचि। रुचि किसमें? भगवत कथा में, भगवत नाम में। हम कहां प्रवचन में बैठते हैं, हम अपने दोस्त दिखा, हम आप लोग के नहीं कहा, नहीं सुना रहे, सारे दोस्त हमारे ऊपर। हमारे गुरुदेव कहते थे, चलो बामन गोसाई महाराज कहते थे, मैं जो प्रवचन देता हूं मेरे अपने लिए, दूसरे के सुनाने के लिए नहीं है। अपने खेद को, खेद समझते हो, मैं अपने व्यक्त कर रहा हूं, आप लोग मेरे सभी गुरुवर्ग हैं, आप लोग हमें क्षमा करें।
रक्षा करेगा। हमारे गुरुदेव यही कर प्रवचन देते थे, है व्यक्ति मानस आशा सुन नाम गाने सुना रुचि। हम प्रवचन सुनना नहीं चाहते, हम प्रवचन करना चाहते हैं, हम लोग भी सुनाना चाहते हैं, हम सुनना नहीं चाहते। जल्दी जल्दी सुना बोल करके मैं भाग जाता हूँ। दूसरे क्या बोले, क्या सुनना है, वो क्या जानता है मुझसे ज्यादा। मैं सबसे बड़ी पंडित हूं, क्या बोलेगा वो। ये अहंकार है। खामते मतलब व्यक्ति मानस है। जैसे कोई बता रहे थे वो तो गुरुदेव की कथा। गुरुदेव जब वृंदावन जब परिक्रमा में जाते थे, जहां जहां पर भी हम गुरुदेव की देखा, गुरुदेव की उदारता, गुरुदेव की महानता न भूतो न भविष्य थी। स्वयं कम बोलते थे और सब भक्तों के द्वारा कहते हैं ब्रह्मचारी ये सन्यासी तुम लोग बोलो। बता नहीं, जिसका हजारों लोग जिसकी कथा सुनने के लिए एकत्रित होते थे, कहते गुरुदेव आपकी कथा सुनने के लिए हम आए, लाखों रुपया खर्च करके हम किस लिए आए हैं? आप उस्टन से गए वृंदावन, कितना पैसा लगा? इंडियन मनी है, 1 1.5 लाख रुपया लगा। गए किस लिए गए? आपके उद्देश्य क्या था? गुरुदेव के प्रवचन सुने, गुरुदेव की कथा सुने। भाई तुम्हारे गुरु की निष्ठा है, बहुत अच्छी बात है? कहते हैं सच्चा गुरुदेव की कहते थे। जिस दिन गुरुदेव कम बोलते थे वह नहीं बोलते थे, मैं देखा गुरुदेव के सामने आकर के वो लोग आंसू गिराते थे, कहते थे गुरुदेव आपकी कथा सुनने के लिए आज हमें मिलाएंगे। आपने बोले ही नहीं, उस ब्रह्मचारी ने बुलवाया, उस सन्यासी के लिए आप नहीं बोले, थोड़ा बोले। हम तो लाखों पैसा खर्च करके आए हैं आपके कथा सुनने के लिए। गुरुदेव ने क्या उत्तर दिया, याद होगा आपके साथ? बोले देखो ये ब्रह्मचारी सन्यासी बोलते उसकी भी कथा मैं सुनता हूं, वो तोतली भाषा में जो भी बोले उसमें भी आनंद होता है मेरा। जैसे गुरुदेव की कथा है, गुरुदेव कितने महान है? वो तोतली भाषा में जैसे माता पिता के सामने छोटा बच्चे जैसे पिता नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पापा पापा। पिता माता उसे पापा पे सुनकर कितना आनंद होता है? गुरुदेव की महान वैशिष्ट उदारता। आज उदारता किसी के पास होगा? हमें माइक दे दे, माइक छोड़ता नहीं, किंतु गुरुदेव हमारे ऐसे परम उदार थे। ब्रह्मचारी समय बोलते जाओ तुम बोलो, देखे हुए ना गुरुदेव कितने समय बोलते? 10 मिनट बोले, तुम बताओ। गुरुदेव स्वयं कहते थे मैं ये ब्रह्मचारी से, ये सन्यासी से सुन करके मेरा हृदय में आनंद होता है। अपने गुरुदेव के तिरुभाव तिथि में स्वयं कम बोलते थे, हम लोग ही बुलवाते थे। हमें याद है, कहते ब्रह्मानंद तुम बोलो हमारे गुरुदेव के बारे में। हम तो क्या बोलते? गुरुदेव कहते थे, हम कहते गुरुदेव आप गुरुदेव को ना देखा ना सुना, आप तो बताओ। नहीं जो सुना मैं इतने से तो बोला, डांटते थे। जब हम कहते थे गुरुदेव आपके गुरुदेव बारे में हम क्या बताएंगे, मेरा बात सुन बोल, इतने दिन क्या सुना? मैं तो बोला ना, वही बोल। हमें याद है गुरुदेव की तोतली भाषा में इधर उधर बोले, गुरुदेव प्रसन्न होते थे और गुरुदेव प्रशंसा भी करते थे। गुरुदेव स्वयं प्रशंसा करते थे, देखो ये ब्रह्मचारी सन्यासी मेरे गुरु के बारे में कितने सुंदर बोला, और बोलने के गुरुदेव के आंखों से आंसू आ जाता था। मैंने देखा है उनके गुरु के बारे में हम जब बोलते थे भक्त प्रकरण कृष्ण जो कोई बोले और गुरुदेव के आंखों से आंसू आ जाता था, और स्वयं भी बोलते थे आंखों में आंसू। इसी कहते हैं उदारता है। इसी को खंत्र वर्तकार्तम वृत्तिमान सन्नता असावंद समत कंठा नाम गाने सदा रुचि आसिति तद्गुणान खन प्रति तद्वसते स्तरी इत्तो देवतुराजित भावं कुरी। ये 9 लक्षण होता है। ये भी क्या? एक्सटर्नल 9 एक्सटर्नल सिम्टम्स ऑफ भाव को अंकुर, ये आप सुनिए। इंटरनल सिम्टम 3 है, भगवत प्राप्ति लालसा, ये रहता है जीवन में। इस वक्त बहुत सुख शांति सुख में विचार है, तत्व सिद्धांत है। क्योंकि ये सिद्धांत जाने के लिए आपको गीता की अनुशीलन करना पड़ेगा, जिसमें भगवान करे मनमना भोग। ये मनमना भोग की सर्वोत्तम विकास किसमें, प्रकाश किसमें? गोपियों में, जिसके गुरुदेव ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। नौतुका जी आपके चरण में तो अपराधी हो गए, समय आपको ले लिया
क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। गुरुदेव एक एक शब्द के कितने सुंदर रूप में वर्णन करते थे, जिसे सुनकर के समस्त श्रोताओं के मन मंत्र मुग्ध हो जाते थे, सबके हृदय द्रवित हो जाता था। गुरुदेव की जो है कितने सुंदर मधुर। क्यों? एक शब्द सुनो, हमारे गुरुदेव कहते थे, बोले कथा सुनना, भजन अधिकार, 3 माथा से सुनो। क्या बोला? 3 माथा से सुनो, 2 माथा से, 1 माथा से नहीं। हम तो सर हमारे गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? 3 माथा वाला पास के पास जाओ कथा सुनने के लिए। 3 माथा किसको होता है? 3 सिर वाले व्यक्ति के पास जाओ। 3 सिर वाले कौन होता है जानते हो? जो वृद्ध प्राचीन, भजनशील में प्राचीन है। जैसे हम उदाहरण थे हमारी भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, ऐसे प्राचीन भक्त है, अनुभवशील है। 2 साल के जोगी जोगी जोगरा, क्या बोलेगा वो? हमारे त्रिविक्रम महाराज का दे, क्या बोलेगा वो? तो केवल कृष्ण श्लोक पढ़ करके आप यहाँ पर बोल देंगे। क्या उनके अनुभव है? हमारे त्रिविक्रम महाराज को प्रवचन सुनना बहुत डांटते थे। है? ये ब्रह्मचारी क्या बोलेगा? कितना दिन आया मन में, कितना हरिनाम करते हैं, 1 लाख हरिनाम क्या है जीवन में? त्रिविक्रम महाराज ये प्रवचन सुनना ऐसे करते थे। 1 लाख हरिनाम कभी जीवन में किया तो क्या बोलेगा वो? बहुत अच्छा प्रवचन है, अच्छा प्रवचन है। हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की कथा सुनोगे ना भाई, बिल्कुल आपको जो ठीक कर देंगे। कहते महाराज बहुत ब्रह्मचारी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? बेकार की बात है। कॉमिटिंग इन द मेमोरी, वोमिटिंग इन द पेपर है। केवल याद करके है ना, लोगों की अच्छी तरह से सुंदर सजा करके बोलते। अरे ये भजन की अनुभूति जो कथा जो है, गुरुदेव की कथा में देखो भजन की अनुभूति निकालता है। क्योंकि 60 साल भजन किया, हम अपने जन्म से सिखा रहे हैं, समझ में है तो भगवान के लिए तो परिकर, तथापि हमारी दृष्टि में जो कौन कितने साल भजन किया, सब सुखदेव गोस्वामी बात नहीं कहते महाराज सुखदेव गोस्वामी 16 साल के। अरे सुखदेव गोस्वामी तुरंत वो राधा जी के प्रिय सुख है। बात सत्य की नहीं, क्या भजन करेंगे? हमारे श्रीधर महाराज जी कहते, भक्ति रख श्रीधर महाराज जी कहते, बोले साधु के गुण करना, तब गुण करना जो मर करके छाई हो जाए, माने समाप्त हो जाए, तब गुण करना। अभी क्या है, कब पतित हो जाए, अभी गुरु गुरु कर रहे हो और फिर कह रहे क्या करोगे? ज्यादा ये मत कर, थोड़ी बहुत शांत हो करो, भजन करो। भजनशील परायण व्यक्ति के पास जाओ। तस्मात् गुरुं प्रपद्ये जिज्ञासुश्रेयोत्तमं शब्दे परिचय स्नातम ब्रह्मणुपस्माश्रय। अनुभवशील के पास जाओ, तत्व ज्ञानी के पास जाओ। 3 लक्षण होना चाहिए, एक अनुभव, तत्व ज्ञान और वैराग्य, संसार से अनासक्त है। ये तो मैं नहीं कर रहा हूं, शास्त्र की वचन है, गुरुदेव की कथा है। अभी क्या बोलेगा वो? यह पर एक बोले महाराज बहुत अच्छा थे, नचाया, आहा क्या नचाया, माया से नचाया। तुमको माया से नचाया, तुम जानते नहीं। भजनशील परायण कितना हरिनाम करता है, उनको पूछो, उनके आत्मा के पूछो, सच बताएंगे। मैंने के जीवन में कितना हरिनाम करता हूं, मेरे गुरुदेव के प्रति मेरे कितना निष्ठा है। तुम जगत के वंचित कर सकते हो किंतु भगवान के वंचित नहीं कर सकते है। माने आप दूसरे की चीट कर सकते हो किंतु भगवान की चीट नहीं कर सकते। बात ही सत्य है। इसलिए भजन परायण से नाम भजन कितना गुण करता है। शास्त्र ज्ञान तो कर लेते हैं, पढ़ लो, आपकी मेमोरी अच्छा है, एक बार पढ़ करके याद कर ले तो उससे थोड़ी हो जाता है। यदि कहते हैं न्याय आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधा न बहुना श्रुति न जमे वैसे वृंदे तेन लभ्यो तस्से आत्मा वृणते तनुस्सा। वह भगवत तत्व, अपराकित तत्व, ट्रांसेंडेंटल थिंग्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड विथ योर मटेरियल नॉलेज। जड़ ज्ञान के द्वारा नहीं,
उसको जानने के लिए है भजन साधन करो। और स्वयं भगवान केवल भजन साधन के द्वारा नहीं होगा, भगवान कृपा करके स्वयं तुम्हारे हृदय में जब प्रकाशित हो जाए। इसलिए भगवान कृपा अपने भजन कर, नाम भजन, जो जितने नाम भजन करता है, जो जिसके जी गुरु के प्रति निष्ठा रहता है, जो जितनी सेवा करता है, उनके हृदय में वह अपराजित तत्व वस्तु अपने आप प्रकाशित होता रहता है। जथा जथा मृज्यमानम, जिस प्रकार सूर्य उदित होने के साथ ही साथ जिस प्रकार निहार बने वो है कोरे है ना, है पब वो क्या हो जाता है, फट जाता है, बादल फट जाता है और सब कुछ दिखाई पड़ता रहता है। जब कोरा कोरा चलता, कोरे बोलते क्या बोलते हैं, फग, हम देख नहीं पाते। और प्रातः काल होने के साथ जितने सूर्य उदित होगा, सूर्य रश्मि आते जाएगा, वो फग अपने आप दूर है। ठीक उसी प्रकार भजन करते जथा जथा मृज्यमानम, भाग एक पुराण की श्लोक है, जितने जितने परिमाण तुम्हारी भजन होते जाएगा, भजन के प्रभाव से तुम्हें सब कुछ दिखाई पड़ेगा। आत्मस्वरूप की उपलब्धि होगा, गुरु के स्वरूप की उपलब्धि होगा, भगवत स्वरूप की उपलब्धि होगा। ये तो कहते हैं इसलिए क्या करना चाहिए, गीता में जो अंतिम वचन वास्तव रूप में ये भागवत की भी सार है। गीता के तो सार है ये भागवत की भी सार कहा जाता है। यदि हम देखें गुरुदेव के वचन करें, ये मन मना हो मत भक्त मत जाति मांग नमस्कार बलो वृंदावन बिहारी राम वंशा गुरुपाल सिंधु विवचन पतितानंद पावने वैष्णव। आप सभी लोग मेरे भी आशीर्वाद करें, जन्म जन्मांतर ऐसे गुरुदेव की सेवा और भजन में मेरा अपराध हो जाए क्षमा कर देना। बस आप लोग तो दयालु है, क्षमा करोगे, यही तो इसलिए तो मैं आप लोग के पास आता हूँ। आप लोग के पास आने की मेरा तात्पर्य क्या है, इंडिया से इतने पैसा खर्च करके आप लोग के पास किस लिए आए, किस लिए आए, सुनाने के नहीं, आप लोग की कृपा प्राप्ति करने के लिए। क्योंकि मैं ऐसे कोई सिद्ध महात्मा नहीं हूँ, आप लोग की कृपा करने के लिए, आप लोग की कृपा प्राप्ति करने के लिए मैं है। और महाप्रभु ने साथ ही साथ कहा पृथ्वी के आशीष तो नगर ग्राम सर्वत्र मोर, इसलिए ये निमात नहीं कि मैं आप लोग सुनाने के लिए आऊँ है। आप लोग मुझे आशीर्वाद, आप लोग के आशीर्वाद मेरी प्राप्ति सर्वत्र सब भक्त के पास मैं जाता हूँ। मैं यही बात कहता हूँ, मैं आप लोग के पास आया इसीलिए सभी हमें कृपा करें, हमारे गुरुदेव के प्रति हमारी निष्ठा रहे, भगवान के प्रति निष्ठा, नाम के प्रति निष्ठा, बहुत प्रेम।